Hello, my dear students. Good morning. This is our second class of life process respiration. Respiration, it is the process to release the energy by the oxidation of food or glucose. That is what respiration. Respiration, it is the life process. We are the multicellular organisms. We have complex body organization. To perform this life process respiration, we have the organ system or the body system. That is what respiratory system. In our previous class, we had discussed the respiratory system and we were on the topic the features of respiratory organs. And the question is, what should be the features of respiratory organs? So the topic is features of respiratory organs. पहला फीचर है a respiratory organ should have the large surface. That is for more exchange of gases. अब यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हाउ द लंग्स आर डिजाइन टू हैव मोर सरफेस. द लंग्स आर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ एल्वियोलाई, द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. एल्वियोलस सिंगुलर है और एल्वियोलाई वो प्लूरल है. Lungs are having the sac-like structures known as alveolus, plural is alveoli. Due to the large number of alveoli, the surface area in the lungs is more, and that helps in the exchange of more exchange of gases, that helps in good oxygenation of the blood. Respiratory organ का second feature, walls should be thin and moist. The walls of the respiratory organs should be thin. It should be thin. The walls of the respiratory organs, it should be thin for the exchange of gases. And it should be moist ताकि during the diffusion of the gases, ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन वॉल्स के अंदर क्रैक ना आए, क्योंकि जो मॉइस्चर होगी वो उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो वॉल्स है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देगी. इट हेल्प्स इन द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज, वो डिफ्यूजन में ठीक रहेगा. सो द वॉल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन शुड बी थिन एंड मॉइस्ट, एंड द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई इट इज थिन एंड मॉइस्ट. And the third feature, a respiratory organ should be supplied with large number of blood capillaries. The respiratory organ should be supplied with large number of blood capillaries. Because blood is the medium of transportation of gases. If the respiratory organ is supplied with large number of blood capillaries, more blood. Blood is the medium of transportation of metabolic gases, and that helps in the more exchange of gases. So these are the features of respiratory organs. A respiratory organ should have the large surface,
The walls of the respiratory organ should be thin and moist. The respiratory organ should be supplied with large number of blood capillaries. अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो ये 3 मार्क्स का CBSE का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. अब बेटा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ लिया जाता है, हाउ द लंग्स आर डिजाइंड एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. तो पॉइंट फर्स्ट, the lungs are having large number of alveoli, and due to that the surface area in the lungs is more, that helps in the more exchange of gases. Second point, the walls of the alveoli is thin and moist, it facilitates diffusion. Third point, the lungs are supplied with large number of blood capillaries, as blood is the medium of transportation of metabolic gases, that helps in the exchange of gases, or that helps in the oxygenation of the blood. So this is how the lungs are designed as the respiratory organs. So this is all about the features of the respiratory organs. ये हमारा एक बेसिक टॉपिक है. अब इसके ऊपर डेली लाइफ के अंदर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस मैटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, इट्स एप्लीकेशंस. ओके गाइस, स्टूडेंट्स, इसका एप्लीकेशन डिस्कस करने से पहले मैंने अभी एक टॉपिक डिस्कस किया, दैट ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक गैसेस. एक बार हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हाउ द ब्लड एक्ट्स एज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक गैसेस. ब्लड is red in color. This is because of RBC, red blood cells, and red blood cells are red in color. That is because of the red colored pigment hemoglobin. It is a red colored pigment present in RBC. So RBCs are red in color. RBCs are present in blood, so the blood is red in color. This hemoglobin, इसके बारे में आपसे बोलता है, which is the iron protein present in blood, which is the iron compound present in blood, तो वो hemoglobin है. This hemoglobin, it acts as a transporting protein. This act as a transporting protein. So how it acts as a transporting protein? Before explaining this as a transporting protein, एक बार मैं आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताना चाहूंगा कि रेस्पिरेशन एक्चुअली होता क्या है. In the cells, glucose in the in the presence of oxygen, it converts into CO2 plus H2O. Energy is released in the form of ATP. ये रेस्पिरेशन है. The question is, how the oxygen is carried to the cells, and by the respiration जो CO2 रिलीज होता है वो बॉडी से बाहर कैसे निकलता है. Oxygen and CO2, they are the metabolic gases. They are transported by hemoglobin. How they are transported by hemoglobin, मैं आपको वो डिस्कस करवा रहा हूं. ऑक्सीजन combines with hemoglobin and forms oxyhemoglobin.
the blood which is having hemoglobin in the form of oxyhemoglobin is known as oxygenated blood, is known as oxygenated blood. The oxygen combines with hemoglobin, it forms oxyhemoglobin. The blood which is having hemoglobin in the form of oxyhemoglobin is known as oxygenated blood. This oxygenated blood from the lungs, it comes in the heart. Heart pumps the blood throughout the complete body in the blood capillaries. From the blood capillaries, by the process of diffusion, oxygen comes to the cell. How it comes to the cell? कि जो oxyhemoglobin है ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है. दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड. ये टूट जाता है ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में. तो सेल्स को दे दिया ऑक्सीजन और बदले में ले लेगा CO2. तो जो CO2 बना है, दिस CO2 it combines with hemoglobin and forms carbamino hemoglobin. The blood which is having hemoglobin in the form of carbaminohemoglobin, that is known as deoxygenated blood. That is known as deoxygenated blood. ये deoxygenated blood बॉडी से आएगा हार्ट में, हार्ट से आएगा लंग्स में, इन द ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बामिनोहीमोग्लोबिन टूट जाएगा CO2 में और हीमोग्लोबिन में, क्योंकि ये भी अनस्टेबल कंपाउंड है. CO2 from the blood capillaries that comes in the alveoli और alveoli से through the respiratory system CO2 बाहर निकल जाता है. So this is how in our body oxygen and CO2, which are the metabolic gases, they are transported by hemoglobin. That's why hemoglobin is known as transporting protein. तो यहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि हाउ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स द मेटाबॉलिक गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2. हाँ, ध्यान रहे सारा का सारा CO2 इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन बिकॉज CO2 इज soluble in blood plasma. Almost CO2 in the dissolved form in blood plasma, it is carried to the heart, and from the heart it is carried to the lungs to remove from the body. तो CO2 इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगी. अब यहाँ पर एक थोड़ा सा स्पेशल केस है. वो स्पेशल केस ये है कि ये क्लासरूम है. इस क्लासरूम के अंदर इफ समवन कोई अंगीठी जला के सो जाए या थोड़ी सी लकड़ियां जला के सो जाए और रूम बंद हो तो बंदे की डेथ हो सकती है. बंदे की डेथ क्यों होगी? दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. how there is a death by the release of carbon monoxide gas? क्योंकि रूम के अंदर जब तक ऑक्सीजन है तब तक तो वो लकड़ियां हैं जलती रहेगी या अंगीठी चलती रहेगी. जैसे रूम के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन का कंटेंट डाउन होगा तो होगा क्या कि रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाएगी. तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बनेगी, इट कंबाइंस विद hemoglobin and forms carboxyhemoglobin. कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन है वो एक स्टेबल कंपाउंड है कि वंस अगर हमारा हीमोग्लोबिन कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया
तो दोबारा से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है डाउन हो जाएगा, और बॉडी के अंदर जब मेटाबॉलिक गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन डाउन हो जाएगा तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इफेक्ट में आ जाएगा, बंदे का रेस्पिरेशन धीरे धीरे डाउन होगा, पहले अनकॉन्शियस होगा एंड फाइनली इट लीड्स टू द डेथ। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द फाउंडेशन साइंसेज एज वेल एज इन द फॉर कॉम्पिटिशन साइंसेज। तो एक बार आप सभी इस बात को कॉपी कर लें। So we were on the topic the features of respiratory organs, and now we'll discuss the applications of this concept in the daily life. जैसे an athlete should not smoke. अब इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग रेट पर मिनट, हम कितना श्वास लेते हैं और कितना श्वास छोड़ते हैं, दैट इज ब्रीदिंग रेट। हमारा ब्रीदिंग रेट है, इट इज फ्रॉम 20 to 25। Breathing rate is inversely proportional to body size. तो जैसे हाथी का बॉडी साइज बड़ा है तो उसका ब्रीदिंग रेट स्लो होगा, हमारा ब्रीदिंग रेट हाथी से ज़्यादा होगा, और चूहे का ब्रीदिंग रेट हमारे से भी ज़्यादा होगा। तभी आप देखा करो कि एक चूहा है, भागता है और फिर वो श्वास लेता है, कुत्ता भागता है और फिर श्वास लेता है, उनका बॉडी साइज छोटा है, उनका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा है। छोटा बच्चा होता है हमारा 6 महीने का, 3 महीने का, 8 महीने का बच्चा, हम कभी उस पर एक मग्गा पानी नहीं डालते हैं। एक मग्गा पानी डालेंगे तो बच्चा श्वास भूल जाएगा, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पानी लेके थोड़ा 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 डाल के उसको नहलाते हैं। Reason being कि we have the lungs as the respiratory organs, and lungs can only take the oxygen that is present in air. बच्चे पे आपने एक मग्गा पानी डाला तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी, और पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको बच्चा ले नहीं पाएगा, उसका श्वास रोकेगा, बच्चा यूं करेगा। तो इसीलिए हम बच्चे पे एक मग्गा पानी नहीं डालते। अगर 5-7 मग्गे अगर लगातार बच्चे पे डालते तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे का बॉडी साइज छोटा है तो उसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्फेंट का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा या एडल्ट का। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इन्फेंट का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा। तो एक रैट का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा या एलिफेंट का ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होगा? रैट का होगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ टॉपिक पे, द एथलीट शुड नॉट स्मोक। एक एथलीट का स्टैमिना होना चाहिए कि मान लो आई एम द स्प्रिंटर, मुझे 100 मीटर की रेस लगानी है या 200 मीटर की रेस लगानी है, तो मेरे लंग्स के अंदर इतनी एयर भरी हुई होनी चाहिए कि मैं 100 मीटर की रेस खत्म करके ही श्वास लूं। अगर बीच में मैंने श्वास ले लिया तो बाकी के लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे। तो एक एथलीट का स्टैमिना ज्यादा होना चाहिए, मतलब
उसके लंग्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, उसके नंबर ऑफ एल्वियोलाई ज़्यादा होने चाहिए, एल्वियोलाई हेल्दी होनी चाहिए, ताकि उसके लंग्स के अंदर मैक्सिमम एयर को, ऑक्सीजन को वो होल्ड कर पाए। इफ द एथलीट विल स्मोक, तो क्या होगा? ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग, a black color tar like material that accumulates in the walls of alveoli. alveoli के अंदर एक काले रंग का एक टार लाइक मटेरियल है, वो वहां पर डिपॉजिट होता है। उसका डिपॉजिट होने, वो डिपॉजिट होके हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने से जो एल्वियोलाई की वॉल्स है वो ब्रेक हो जाती है, तो उसे नंबर ऑफ एल्वियोलाई रप्चर हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ एल्वियोलाई रप्चर होंगे तो लंग्स का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और जब लंग्स का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो एथलीट का जो स्टेमिना होगा वो डाउन हो जाएगा। बिकॉज नंबर ऑफ एल्वियोलाई रप्चर हुए, नंबर ऑफ एल्वियोलाई रिड्यूस हुए, लंग्स का सरफेस एरिया कम हुआ, तो वो लेस ऑक्सीजन को होल्ड कर पाएगा, उसका स्टेमिना कम हो जाएगा। सो द एथलीट शुड नॉट स्मोक। ए टीचर शुड नॉट स्मोक बिकॉज वी आर द टीचर्स। हमें अपने लेक्चर की डिलीवरी को एफिशिएंट करने के लिए समटाइम्स वी हैव टू स्पीक कॉन्टिन्यूसली टू मैनेज द एफिशिएंसी ऑफ द लेक्चर्स। अगर हमारी एफिशिएंसी कम होगी तो बीच बीच में खांसी आएगी। तो एक टीचर को भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग ए ब्लैक कलर tar like material, it deposits in the inner walls of the alveoli, and that tar like material it hardens, और उससे एल्वियोलाई की वॉल्स रप्चर होंगी, नंबर ऑफ एल्वियोलाई रिड्यूस होंगे, लंग्स का सरफेस एरिया डाउन हो जाएगा, उससे हमारा स्टेमिना है वो डाउन हो जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन है, cigarette smokers faces the higher risk of heart attack. Cigarette smokers, they faces the higher risk of heart attack. देखो बेटा, लंग्स और हार्ट दोनों कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। लंग्स का काम तो है ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, और हार्ट का काम है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना, लंग्स में भेजना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना और बॉडी में भेजना। अगर लंग्स का सरफेस एरिया अच्छा है, लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है, तो हार्ट पे ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। हार्ट लंग्स में ब्लड भेजेगा, आराम एक साथ लेगा और बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा, तो उस समय हार्ट हमारा एक रिलैक्स्ड फेज में रहेगा और नॉर्मली वर्क करता रहेगा। ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग नंबर ऑफ एल्वियोलाई रप्चर होंगे, लंग्स का सरफेस एरिया रिड्यूस होगा। जब लंग्स का सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो क्या होगा कि लंग्स की ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड करने की कैपेसिटी डाउन हो जाएगी, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में आएगा। लंग्स की कैपेसिटी कम है तो डिफ्यूजन ऑफ मेटाबॉलिक गैसेस कम होगा, तो कम अमाउंट में ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। फ्रॉम द हार्ट लंग्स ब्लड लेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स हार्ट को देंगे। क्वांटिटी कम होने से फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड बिटवीन लंग्स एंड हार्ट ज़्यादा होगी, हार्ट पे बर्डन बढ़ जाएगा, हार्ट पे बर्डन बढ़ेगा,
हार्ट को बार बार में पंप करना पड़ेगा, बार बार में पंप करना पड़ेगा और हार्ट कभी थक जाएगा, it leads to heart attack. So the cigarette smokers, they faces the higher risk of heart attack. तो ये questions हैं, they are related with the features of respiratory organs. अब यहाँ पे थोड़ी सी और एक जनरल डिस्कशन है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लंग्स है, फिश के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर गिल्स हैं, और जो आर्थ्रोपोडा है उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है वो अलग है, वहाँ पे स्पाइरेकल्स हैं, और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. तो टॉपिक था बेटा अपना कि एक्वेटिक एनिमल्स हैव हायर ब्रीदिंग रेट देन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. द रीजन बीइंग aquatic animals have gills as the respiratory organs, and gills can only take the oxygen that is dissolved in water, and water have less amount of dissolved oxygen. So the aquatic animals, they have to breathe more. The terrestrial animals, they have lungs as the respiratory organs, and the lungs can take the oxygen that is present in air, and in air the amount of oxygen is more, so we have to breathe less. So because of this reason the aquatic animals have higher breathing rate than terrestrial animals. फिर यही इसी डिस्कशन में फिर एक क्वेश्चन जनरेट होता है. क्वेश्चन ये है, a fish that is taken out of the water dies although more oxygen is present in air. The answer is, you can make the answer from here. The fish have gills as the respiratory organs, and gills can only take the oxygen that is dissolved in water. The gills cannot take the oxygen that is present in air, so the fish is unable to breathe, and that's why a fish dies. Likewise, फिर एक यहाँ से फिर एक क्वेश्चन निकलता है कि एक नॉटी बच्चा है और उस बच्चे ने एक कॉकरोच को पकड़ रखा है, एक चूहे को पकड़ रखा है. तो दोनों को उल्टा कर रखा है, और कॉकरोच को और चूहे का दोनों का मुंह है वो पानी में डुबा रहा है. थोड़ी देर बाद में चूहा बेचारा मर जाता है और कॉकरोच सरवाइव कर जाता है. रीजन बीइंग कि जो चूहा है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स है, एंड लंग्स कैन ओनली ब्रीथ इन एयर. जब उसका मुंह बार बार में पानी में डुबाएंगे, that rat is unable to breathe, the rat dies. और जो कॉकरोच है, कॉकरोच की पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उन पोर्स को कहेंगे स्पाइरेकल्स. थ्रू द स्पाइरेकल्स एयर का, ऑक्सीजन का और CO2 का डिफ्यूजन विद सराउंडिंग चलता रहता है. मान लो उसकी आधी बॉडी पानी में डुबा दी, तो बाकी की आधी बॉडी में जो स्पाइरेकल्स है उसके थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस चलता रहेगा. बिकॉज ऑफ दैट द कॉकरोच सर्वाइव्स. सो दिस इज द डिस्कशन ऑन टुडेज क्लास, द फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के जो फीचर्स है उसके ऊपर ये एक इनडायरेक्ट डिस्कशन है. दिस इज व्हाट द अप्लाइड बायोलॉजी. थैंक यू.